Hey everybody. So today we are doing an important question in determinants, and this is this one. So what happens here? It is example number 33 of this chapter, determinants in NCERT. So what we were given? We were given to to find out the product of these two matrices, right? We were said to find the product of these two matrices, and thus we did so. After doing so, we got an identity matrix. So in this type of questions, whenever we will be given two matrices and their product has to be found out, and after that, we have to use it to solve a system of linear equations. So in those particular questions, always you will observe that I3 would come, means identity matrix would come. Now it will depend that whether it will be simple I3 or it will be I3 with some scalar multiplication like 8I3 minus 5I3, etc. So it can be multiplied, it can be given in scalar multiplication with any integer, but definitely we will get an identity matrix. It will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Either it will be alone or it will be with a number. So here we calculated its product and we got to know that it was equal to 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, which means I3. Now from here, we derived an important result, which was this: that we have calculated the, in the inverse of this particular matrix, and definitely we can see that if AB is equals to 1, I have written it here also. If in normal numbers AB is equals to 1, then B would be equal to A inverse, or we can say A is equal to B inverse, right? So here we have seen that it is done. Now we came on the system of linear equation which was given in the question. According to them, we wrote A, X, and B. Ax is equal to B, so X is equal to A inverse B. And now A inverse, I have written like as it is, A inverse. Okay. And its value, I have already calculated in the here. I have already calculated it. So we have got its value also. And when we now, do its product, we will get a 3 cross 1 matrix. So we will get the values of X, Y, and Z respectively. So therefore, we have calculated, or we have, solved the system of linear equations by finding out the value of X and Y and Z. So this is how we will do such type of questions. So it is clear to you, Akshat? Is it clear to you, Akshat? Yes, Didi. Okay, great. अब देखो हमें और क्या करना है. सो तुमने वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, मतलब इसके अलावा जो मिसलेनियस को छोड़ के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए? यस दीदी, मिसलेनियस भी. अच्छा, मिसलेनियस भी कर लिए ना. हाँ, मैं तो उसमें ही एक आध रह गया था, तो हम उसको भी फटाफट देख लेते हैं कैसा क्या चल रहा है. कुछ तो प्रॉपर्टीज वाले हैं, तो प्रॉपर्टीज वाले तो डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं हमारे पास. इसमें ना काफी सारे प्रॉपर्टीज वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट अब जैसे 17 जो है इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी. दीदी आ गया 19th भी, डी आएगा. 19 आ गया? यस दीदी, डी आएगा. कैसे किया? सिंपली. फिर भी बता दो कैसे किया. बताऊं? एक ही सेकंड. इस साइड में अपने को इक्वेशन दे रखी है ना. 0 is smaller than theta and theta is smaller than 2 pi. और ये अपने को मैट्रिक्स दे रखी है 1 sin थीटा माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 sin थीटा 1. मतलब ये बहुत ही सिंपल सा है और तुम्हें यस दीदी, मैं ना एक डिटरमिनेंट ये आ जाएगा a is equals to 1 into 1 plus sin square थीटा
राइट माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा प्लस 1 साइन। दीदी सही कॉल है, आ गया था एक बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और चलो एक प्लस बार 1 मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हाँ हाँ हाँ, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 साइन थीटा। ओके, तो तुम सही बता रहे हो, एक बार म्यूट कर लो, मैं एक बार बता क्लास चल देती रही हूँ। है, क्लास चल रही है। अक्षर म्यूट कर लो। दीदी फोन आ गया। कोई बात नहीं, म्यूट कर लो अभी। एक बार मैं बता देती हूँ वाला क्वेश्चन, मतलब तुम्हें आ गया है, पर मैं एक बार यूट्यूब वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ। ओके, सो मिसलेनियस वाले में ऑल द क्वेश्चंस आर इजी एंड दिस वन इज आल्सो इजी, बट फिर भी मैं ऐसे ही बता देती हूँ एक बार आप लोगों को भी, कि हमें यहाँ पे ए दे रखी है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा एंड -1 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, ये मुझे एक डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो, simply what do I have to do? Let this be A, so where एक कंडीशन दे रखी है मुझे कि जो थीटा है वो 0 और 2 पाई के बीच में है। ठीक है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। देन व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट, मतलब जो डिटर्मिनेंट ए है वो कहाँ लाई करने वाला है, तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा देखने के लिए। देखते हैं डिटर्मिनेंट ए होगा क्या सबसे पहले, तो है ना, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 1 एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, या फिर अच्छा, ओके ओके ओके, अब अगर मैं चाहूं तो आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद इन, तो मैं 1 कर लिया, इसको कर लिया साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर लिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया +1, है ना। अब दीदी इसको ऐसे कर लेंगे ना 2 प्लस 2 साइन थीटा। बिल्कुल वही करेंगे, तो ये जो है और ये जो है ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो गया। मतलब मैं इसको कैसे और लिख सकती हूँ, मैं 2 अगर कॉमन निकाल लूं बाई चांस, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये मेरे पास आ गया 2 बाहर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाले उसमें क्या करते हैं, एक बढ़िया सी चीज है यहाँ पे, नई सी चीज है थोड़ी, तो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, मुझे ना यहाँ तक तो आ गया समझ में, ठीक है, अब आगे क्या करूं, है ना। तो अब देखो, जो दे रखा होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, मेरे को ये वाली कंडीशन दे रखी है, ये आगे कहीं कहीं जगह पे काम आएगी, तो इस वजह से यहाँ पे ध्यान से देख लेना, मतलब किसी किसी और चैप्टर्स में आती है। तो ये देखो, ये जो दे रखा है मुझे 0, मतलब जो थीटा है, इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 पाई। तो व्हाट आई ट्राई टू डू, क्या करने की कोशिश करती हूँ मैं ना इस वाले थीटा को, मैं मतलब देखो मुझे क्या करना है, मेरे को ये दी वाली कंडीशन तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई थीटा यहाँ लाई कर रहा है। अब मेरे को निकालना किसको है, मुझे किसको निकालना है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, कि डिटर्मिनेंट ए कहाँ पे लाई कर रहा है। डिटर्मिनेंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए है ये। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज टू मेक दिस थीटा दिस, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि जो थीटा है ये बन जाए ये, क्योंकि आई फाइनली नीड टू फाइंड आउट दैट ये डिटर्मिनेंट कहाँ पे लाई करेगा। मेरे को 0 से 2 पाई के बीच में ये तो पता है कि थीटा लाई कर रहा है, बट ये डिटर्मिनेंट का लाई करेगा ये मुझे निकालना है। अब देखो इस थीटा को मैं ये कैसे बनाती हूँ, ठीक है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम चीजें करेंगे। अब देखो सबसे पहले थीटा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, थीटा तो मेरे पास है, अब मैं क्या करूंगी, साइन जो है ना, साइन
वो ले आऊंगी सबसे पहले, तो साइन ले आऊंगी, मतलब साइन थीटा ले आई। अब अगर मैं साइन थीटा ले आई थीटा की जगह, तो थीटा जो एंगल है वो तो 0 से 2 पाई लाया करेगा। 0 से 2 पाई मतलब थीटा की वैल्यू कैन अज्यूम 0, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 2 पाई इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई। तो ये वाली कंडीशन समझ में आई एक्चुअली, इसमें क्या ले रखा है कि थीटा कहाँ से कहाँ लाया कर रही है, आ गई समझ में? यस दीदी। अब अगर मुझे इसको साइन थीटा, 1 आएगा यहाँ। ग्रेट, इस यहाँ पे आएगा 1। कहाँ से लेकर 1? 0 से लेकर 1, क्योंकि जो साइन थीटा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, यस दीदी। और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई साइन थीटा सबसे छोटा कब होगा? थीटा सबसे छोटा 0 पे होता है, या फिर यही यही देख लो। अगर मैं बोल रही हूँ, या फिर हाँ सिंपल सा ऐसा भी कर सकते हैं हम कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, तो इसको पहले ऐसे लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर मेरे को इसको साइन थीटा बनाना है, मतलब यहाँ मुझे साइन इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे भी मैं साइन इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, और यहाँ पे भी मैं साइन इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 पाई है ये क्या है? 360 है। ठीक है, या फिर 2 पाई भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो आई डोंट नो, क्योंकि साइन थीटा जो थीटा चीज है वो आई डोंट नो विच एंगल इट दैट इज, सो ये तो वो ही रहेगा। साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है अक्षत? हेलो, लीव कर रही हो क्या? यस दीदी। दीदी बार बार कॉल आ रहा है, मैंने अब किया है शायद। अच्छा, साइन 0 क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, यस दीदी 0 और होता है। और साइन साइन 2 पाई मतलब साइन पाई क्या होता है? साइन पाई। 2 पाई क्या होता है ये बता दो। साइन 2 पाई 1। साइन 2 पाई 1 होता है। एक मिनट, एक सेकंड रुकना है ना। एक मिनट रिकॉर्डिंग। So guys, I'm sorry, this wasn't the case. I was slightly confused. यहाँ पे ना हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं रखनी है, मतलब डेफिनेटली ये तो हमें कंडीशन पता है, बट वी नो फॉर श्योर दैट साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है 1। साइन 180 या साइन पाई यू कैन से इट इज 0। सो अब अगर साइन पाई ही 0 होगा, तो साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई सो ऑन टिल साइन n पाई दे विल ऑल बी 0, बिल्कुल 0 होंगे। तो हमेशा हमारा जो यस साइन दीदी। जो हमारा साइन वो होता है ना, मतलब पाई बाय 2 जो है, अब अगर ये पाई बाय 2 में कोई भी n लग जाए, मतलब पाई बाय 2 का 1 होता ही है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो, 3 पाई बाय 2 हो, मतलब यहाँ पे n की जगह 1 हो या 2 हो या 3 हो या कुछ भी चीज हो, यहाँ पे ये 1 होगा, जबकि साइन n पाई वुड गिव अस 0। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट यहाँ पे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई साइन थीटा जो है जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मतलब क्या कहाँ से लेकर कहाँ तक अज्यूम कर सकता है वैल्यूज। तो ये 0 से लेगा और 1 तक लेगा, मतलब 0 से 1। 1। ठीक है, अब 0 से 1 तो अगर मैक्सिमम रखेंगे ना? क्या मैक्सिमम रखेंगे? वैल्यू मैक्सिमम वाली रखेंगे ना? दोनों, मतलब यहाँ पे ये रखेंगे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 1 पे खत्म होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये वाली बात आई समझ में? यस दीदी। अब क्या, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे हम। साइन थीटा आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? एक बार साइन थीटा आ गया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए फिर नेक्स्ट, बताओ। देखो मुझे क्या करना है, इवेंचुअली इसको मुझे ये वाला फंक्शन बनाना है, राइट? तो अब मुझे अगर साइन थीटा मिल तो गया है, 2 अब से इंटू मुझे कर देंगे, 2 से नहीं 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 मल्टीप्लाई नहीं, कर देंगे। अभी हम करेंगे स्क्वायर। हमें पहले अब साइन थीटा से साइन थीटा
डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकाल सकते थे, तो साइन थीटा निकाला, उसके बाद अब निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो अगेन 0 ही होगा या 1 ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका अगर स्क्वायर कर रही स्क्वायर स्क्वायर करूंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये होगा। नो दीदी यही हो। अब ये तो हो गया हमारा, ओके डन, ठीक है ना। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे निकालनी पड़ेगी साइन स्क्वायर थीटा ऑल्सो आई गॉट, सो 1 प्लस, मतलब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, तो क्या हो जाएगी 1 2 यस दीदी। 1 2, मतलब इस क्या करा मैंने, इसमें +1 किया, इसमें भी +1 कर दिया, इसमें भी +1 कर दिया ना। 2 sin थीटा भी होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फाइनली हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए, ये। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 4 4 आ जाएगा। तो अब क्या थैंक यू। पता चला हमें यहाँ से कि जो ये डिटर्मिनेंट ए है, जो यहाँ पे वैल्यू है ना डिटर्मिनेंट ए, अब इसी को डिटर्मिनेंट ए भी बोल सकते हैं या फिर इसको मैं डिटर्मिनेंट ए भी बोल सकती हूँ। तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये लाई करेगा 2 से 2 से 4। 4। और 2 से 4 में ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये वाला ब्रैकेट अगर मैं लगा रही हूँ और एक मैंने लगाया ये वाला ब्रैकेट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ब्रैकेट में क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होता है? आप ही बताओ दीदी। ओके देखो, यहाँ पे मैं क्यों लगा रही हूँ ये वाला, मतलब देखो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। एक ऑप्शन देखो सी है, एक डी है ना। यस दीदी। बाकी दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 2 टू इन्फिनिटी और 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई 2 और 4 तो आ रहा है, तो ये ब्रैकेट का कैसे चक्कर है। ब्रैकेट का ये होता है कि देखो, अगर मैं ये वाला बोल रही हूँ ना, ये वाला, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। तो बेसिकली क्या मतलब होता है इस बात का कि भैया ये जो वैल्यूज है ना 2 और 4, इसका मतलब ये है कि 2 से लेकर 4 तक सारी वैल्यू अज्यूम कर सकता है डिटर्मिनेंट ए, 2 एंड 4 इंक्लूडेड। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, ये वाला साइन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो है यहाँ पे ये लग रहा है इक्वल वाला। यस दीदी। इसका यस क्या दीदी। मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ना बीच में, वो 2 से लेकर 2 और 4, अगर ऐसे 2 और 4 है, इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज है बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, वो तो अज्यूम कर ही सकता है, साथ में 2 और 4 भी ले सकता है। मतलब इट कैन बी इक्वल टू 2 4 एंड ऑल द वैल्यूज बिटवीन दीज टू। इतना समझ में आया? यस दीदी। पर अगर मैं ऐसे लिखती इसको यूं, इसका क्या ये मतलब इसमें होगा, 3 और इसका मतलब ये ये इंक्लूड नहीं होते 2 एंड 4। 2 एंड 4 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में सारी हो सकती है, मतलब 2 से इधर 4 से इधर सारी, बट नॉट 2 एंड 4। सो इस वजह से इस वाले का मतलब होता है कि हम ना इसका मतलब इसको लगाने का मतलब ही ये है कि हम ये जो 2 वैल्यूज है ना इनको ले रहे हैं, इनको इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। वेयर एज इन दिस केस, जो ये इसको ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, इसमें नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? यस दीदी। तो इसलिए हम जो ऑप्शन टिक करने वाले हैं वो है डी, ना कि सी। इससे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए दिया है वो, है ना। तो इस तरीके से वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यस दीदी। ओके ग्रेट। तो हमारा इस तरीके से चलता है।
डिटर्मिनेंट्स में कि अब देखो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, तो प्रॉपर्टीज नहीं आने की वजह से काफी कम चीजें रह गई हैं, है ना। तुमने 18th कर लिया था क्वेश्चन, ये मिसलेनियस वाला? यस दीदी। 18th कर लिया? कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर 18th में? 18th में आ रहा है ए। ये आ रहा है, कैसे किया? ये इनवर्स ही तो आ जाएगा, ये तो सिंपल ही है। हाँ मतलब जॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट का एक करके कर लिया ना। यस दीदी, ठीक तो है, इनवर्स आ गया, बस इसमें तो सिंपल होगा। राइट राइट। एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। So here's a question, you can just check it out, that we have to use this product again to solve the system of linear equations. I have written it in black. So when I will find its product, it will come out to be 8i3. Now, instead of finding the value from here, let us jump to the like the system of equations. So from here we have calculated a, x and b, and when we have to find out x, definitely we will have to use a inverse b. I have written a inverse as it is, a inverse. Now in order to find this a inverse, definitely I can use this particular thing. So if I want to find out its inverse, I'll do this, and जो भी बचेगा LHS में, that will be my inverse of this particular matrix. So अगर मैं इस वाली value को यहाँ रख दूंगी उठा के, and when I'll solve it, when I'll find its product, so I'll get the value of x and y and z as 3, -2 and 1, -1. So इस तरीके से हमें करना होता है अगर हमें product दे रखा होता है तो, ठीक है। So this is how we do. So in today's class, we saw some important questions on determinants, which are very, very conceptual. तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, stay safe and take care. Bye bye. Hare Krishna.